Hello, my dear students. How are you? I hope you are all well. And you must have seen my previous videos also. I am Jaspir Kaur from Tour Academy. पिछले videos में I have explained about reflection of light, and today I am going to start refraction of light by spherical lenses. तो let's start. First of all, I will explain what is the meaning of lens. क्या lens क्या होता है? So what is a lens? Lens is a piece of glass which has both the surfaces curved. either bulging out or convex surfaces होंगी या फिर अंदर की तरफ यानी कि concave surfaces होंगी. And this piece of glass is known as a lens. क्योंकि ये transparent medium है तो there will be refraction of light. So let's start. कि refraction of light by spherical lenses और we have mainly two types of lenses. एक है हमारा convex lens, this is the convex lens and this is concave lens. कैसी शेप है concave lens and convex lenses की? Convex lens is bulging out, both the surfaces are bulging out and convex shape में है and it is thicker from the central part. ये central part इसका thicker है and edges से it is pointed. Narrow from the points, edges से ये pointed है, narrow है and central part is thicker. On the other hand, we have concave lens. Concave lens is thinner from the middle and thicker from the edges. So this is the shape of our concave and convex lenses. ठीक है? So before starting the actual refraction, you should be familiar with some definitions related to these both the lenses. मिरर्स में भी हमने सेम डेफिनेशंस करी थी पर वो मिरर को लेके करी थी. नाउ वी विल रिपीट द सेम डेफिनेशंस बट ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड टाइप ऑफ लेंसेज. तो फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस. लाइक दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. इसका ये जो सेंट्रल पॉइंट है दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. दिस इज कॉन्केव लेंस. इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर इज डिनोटेड बाय सी. सी से ये हम इसको डिनोट करते हैं. राइट. सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर. मिरर में भी हमने ऑप्टिकल सेंटर देखा था. दैट वाज known as pole of the mirror. यहाँ पे वो है optical center. Number 2 है what is principal axis. Principal axis is the line passing through the center of optical center. जो straight perpendicular to the lens, straight line passing through the optical center. This line, ये जो line इसमें से pass हो रही है, this is known as principal axis. Right? Third point है what is principal focus. All the light rays which are parallel to each other, they pass through the lens. और lens से pass होने के बाद either they converge, they come close to each other and they pass through a common point या they meet at a point. That point is actually known as focal point या focus कहते हैं या principal focus भी उसको बोलते हैं. 3 नाम है इसके. Either you can say focus. Number 2 you can say principal focus या आप focal point भी आपको कह सकते हैं because it is a point. तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस. तो पैरेलल रेज ये जो इसमें से आई, ये जो पैरेलल रेज इसमें से आई, आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे विल पास थ्रू अ पॉइंट. ये इस पॉइंट से पास हो रही है. The point from where these rays after refraction passing through, that point is known as focus. इस point को बोलते हैं focus and it is denoted by capital F. तो ये है हमारा focus. capital F से इसको हम denote करते हैं. तो what is a focus? कि all the parallel rays when they pass through the lens they come close to each other because this is a convex lens. They come close to each other and they meet at a point. That point where they meet or they pass through that point is known as focal point या focus.
और प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। ये है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो कॉन्वेक्स लेंस एज वी नो दे आर कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि ऑल द पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस they will come close to each other. ये coming close to each other, this phenomena is known as convergence, right? That is why sometimes your convex lens is also known as converging lens. Converging lens भी इसको कहते हैं, right? So converging lens है, so naturally it will converge the light rays after passing through the lens and they will go through this point, they will meet at this point. This point is known as focus. और इसमें जो हमारा concave lens है, it is also known as diverging lens. इसको diverging lens भी कहते हैं because it diverges the light rays when they pass through this lens. So इसमें अगर जो rays हैं, they come like this, parallel rays parallel to the principal axis. When they pass through it, they will go away from it. They will diverge like this. इस तरह से वो diverge होंगी. They will diverge and they will go away from each other. This going away from each other. This phenomena is known as divergence. So that is why sometimes your concave lens is also known as diverging lens, right? और यहाँ पे they are not going to meet anywhere. कहीं पर भी ये तो मिलेंगे नहीं because they are going away from each other. तो अब इसका focus कैसे होगा? If you extend, अगर पीछे की तरफ इनको डैश डैश एक्चुअल में ये जाने नहीं है, बट अगर आप लेके जाते हैं पीछे, एक्सटेंड करो पीछे, तो they will appear to meet somewhere here. ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहाँ पर मिल रही है, या यहाँ से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि these two rays are starting from this point. So if you extend these rays here in front of the lens, they will appear to meet somewhere here. So this point will be its focus, focal point है ये इसका, but this is not real focus because actual में ये light ray यहाँ मिल नहीं रही है, बस ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे मिलती है, actual में नहीं मिल रही है, real में नहीं मिल रही है. So this is focus, but this is not, ये focus है इसका, but this is not real focus, this is virtual focus. तो यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज मिल रही है, तो इसका जो फोकस है कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का, वो है रियल फोकस. वो होता है इसका रियल फोकस. रियल फोकस होता है कॉन्वेक्स लेंस का, एंड जो आपका दूसरा है ये कॉन्वेक्स लेंस का है रियल फोकस, क्योंकि एक्चुअल में रेज मिल रही है. एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका डाइवर्जिंग लेंस है, दैट इज कॉन्केव लेंस, इसका फोकस है virtual focus. This is the reason that most of the time normally converging lens makes real images. Real images are those which can be taken on a screen. ये सारे टर्म्स मैं आपको पहले मिरर्स में बता चुकी हूँ. और ऑन द अदर हैंड जो कॉन्केव लेंस है, बिकॉज इट्स फोकस इज वर्चुअल, फोकस ही इसका वर्चुअल है, झूठ मूठ का फोकस है, जबरदस्ती हमने यहाँ मिला के फोकस यहाँ पे बना दिया. इट इज नॉट रियल फोकस, इट इज वर्चुअल फोकस. सो दैट इज वाई ऑलवेज दिस कॉन्केव लेंस मेक्स वर्चुअल इमेज. एक ही पोजीशन है इसकी और एक ही टाइप का नेचर का बनता है, एंड दैट इज वर्चुअल इमेज ये बनाता है. सो फोकस के बारे में आपको मैंने बता दिया. रियल फोकस हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, एंड वर्चुअल फोकस हो गया कॉन्केव लेंस का. उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज focal point focus, principal focus, one and the same thing. What is focal length? Focal length है the distance between focal point and the center of optical center. यानी कि center optical center यहाँ से लेके और focus तक का ये जो distance है, this is known as distance between C and F. So this is known as focal length, and focal length is a distance. एंड ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल एफ से. फोकल लेंथ इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ. अगर वहाँ पे आप कैपिटल एफ लिख दोगे तो वो आपका बन जाएगा फोकस. तो फोकल लेंथ विच इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ, ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ.
दिस इज अनदर डेफिनेशन। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक तो आपने ऑप्टिकल सेंटर देखा, ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ द लेंस। और अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में मैं बता रही हूँ क्योंकि ये आपका जो लेंस है लाइक मिरर, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सॉलिड ग्लास का स्फीयर का एक पार्ट है। आपने एक सॉलिड ग्लास का स्फीयर लिया और उसके इतने पार्ट को आपने काट लिया, तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर लेंस, ये आपका लेंस बन गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो लेंसेज हैं दे आर द पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ग्लास का स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसका एक ये पार्ट है, राइट। तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो अब आ जाइए व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच वी हैव टेकन अवर लेंस। वो स्फीयर जिसमें से हमने अपना ये लेंस बनाया है, लेंस लिया है, दैट उसका जो सेंट्रल पार्ट है ये वाला, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। Center of curvature is the center of that sphere from which we have taken our lens. हमारा लेंस जिस स्फीयर का पार्ट है, ग्लास के स्फीयर का, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर क्या है कि जो आपकी रेज है वो दोनों साइड से पास हो सकती है बिकॉज इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। यहाँ से ऐसे भी आ सकती है रेज, ऐसे भी आ सकती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों साइड आपका होगा। तो इसलिए समटाइम्स नॉर्मली जब भी आप रे डायग्राम बनाएंगे आप सी नहीं लिखोगे, यहाँ पे सी तो हमने ये लिख लिया, ऑप्टिकल सेंटर को लिख लिया। तो अब हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमें पता है कि सी और एफ जो है फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पे, सपोज ये आपका फोकस है यहाँ पे, उसके डबल डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसलिए वी कैन राइट 2f ऑल्सो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट द डबल डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑटोमेटिकली वो होएगा 20 सेंटीमीटर पे, तो हम उसकी जगह 2f भी लिख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द स्फीयर ऑफ विच योर लेंस इज अ पार्ट, एंड उसको हम 2f से डिनोट करते हैं। तो व्हेनेवर यू डू योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या आप रे डायग्राम बनाते हैं तो आप इधर 2f लिखेंगे, ये f लिखेंगे, इधर f लिखेंगे और डबल डिस्टेंस पे आप 2f लिखेंगे। सो 2f से डिनोट करते हैं हम यहाँ पर लेंसेज में सेंटर ऑफ कर्वेचर को। और व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन C एंड 2f, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमने अभी बताया जिसको हम 2f लिखते हैं, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, क्योंकि इट इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच वी हैव टेकन आवर लेंस। इसको r से हम डिनोट करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट दीज डेफिनेशंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। अब थोड़ा सा मैं आगे और आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ये NCERT का एक क्वेश्चन है कि नेचर एंड स्ट्रक्चर के बेस पे हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। उसकी नेचर के बेस पे और उसके स्ट्रक्चर के बेस पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और नंबर 2 है कॉनकेव लेंस, राइट। तो ये डिफरेंसेस पहले तो मैं इनके शेप के बेस पे यानी कि स्ट्रक्चर के बेस पे बताती हूँ। तो दिस इज अवर कॉन्वेक्स लेंस, शेप ऐसी है, एंड कॉनकेव लेंस। तो अभी मैंने इससे पहले आपको शुरुआत में ही बताया कि इसकी जो स्ट्रक्चर है इट इज थिकर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, ये थिकर है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट एंड थिनर एट द एजेस पे पॉइंटेड है, थिन है एंड थिनर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। इस तरह से बल्जिंग आउट इसकी शेप है। और ऑन द अदर हैंड कॉनकेव लेंस इज थिनर फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, फ्रॉम द मिडल इट इज थिन, वेरी थिन, एंड इट इज थिकर फ्रॉम द एजेस। एजेस से ये थिक है और सेंटर से ये
thin, middle part is thinner. So this is on the basis of shape. और उसके बाद है इसकी नेचर के बेस पे, इट इज़ कन्वर्जिंग इन नेचर। ऑल द रेज जो इसमें से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये है इसका C, ये है इसका F, ये है इसका F, ये है इसका 2F। तो आपने सबसे पहले ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस इसकी ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो भी पैरेलल रेज इसमें से पास होती हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे पास लाइक दिस। ये फोकस में से पास होती है। द पॉइंट इज दे कम क्लोज टू ईच अदर। कमिंग क्लोज टू ईच अदर, दिस फिनोमेना इज नोन एज कन्वर्जेंस। सो दैट इज व्हाई इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। एंड नंबर 2, ये जो हमारा लेंस है, all the parallel rays which are parallel to the principal axis, ये हमारी principal axis है, तो when they pass through this lens they will go away from each other. Principal axis से they will go away from principal axis, they will divert. This phenomena is known as divergence. That is why हमारा जो concave lens है, it is diverging in nature, diverging है, right? और ये है हमारा कन्वर्जिंग इन नेचर। सो ये नेचर के बेस पे है, और आगे भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दैट इज कि हम नॉर्मली वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। नॉर्मली इट फॉर्म्स रियल इमेजेस। रियल इमेजेस नॉर्मली बनाता है, एक एक्सेप्शनल पोजीशन है इसमें जिसमें ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है, बट नॉर्मली इट मेक्स रियल इमेजेस। नाउ व्हाट आर रियल इमेजेस? दोज इमेजेस विच कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। सो ये है इसका कि नॉर्मली इट मेक्स रियल इमेजेस। और रीज़न इसका क्या है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज इट हैज़ रियल फोकस। अभी मैंने आपको बताया इट हैज़ रियल फोकस, इसका फोकस रियल है। दिस फोकस कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन, दैट इज वाई नॉर्मली इट मेक्स रियल इमेजेस। एक एक्सेप्शनल पोजीशन में इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑल्सो, वो एक ही पोजीशन है। और ऑन द अदर हैंड जो आपका कॉन्केव लेंस है, इट ऑलवेज, नॉट नॉर्मली, ऑलवेज, कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जिसमें ये रियल इमेज बनाए। इट ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल इमेज बनाता है विच कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। तो ऐसी इमेजेस बनाता है। रीज़न इसका भी यही है कि इट हैज़ वर्चुअल फोकस। इसका अभी मैंने बताया कि इसका जो फोकस होता है, इट अपीयर्स टू बी हेयर बट एक्चुअली इट इज़ नॉट हेयर। तो ये वर्चुअल फोकस है इसका, इसलिए ये इमेज भी वर्चुअल बनाता है, छोटी बनाता है हमेशा। ये बड़ी भी बना सकता है, छोटी भी बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इसकी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये मैंने कुछ आपको डिफरेंसेस बताए हैं बिटवीन कन्वर्जिंग एंड बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो ये चीज़ें आज मैंने आपको बतानी थी, डिस्कस करनी थी। और इसके हाँ, एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बता रही हूँ, और वो टॉपिक मेरा क्या है, रूल्स, रेस के रूल्स विच टू ऑब्टेन एन इमेज। इमेज जो हम ऑब्टेन करते हैं, इमेज बनाते हैं, तो यू विल हैव टू फॉलो सम रूल्स। आपको जो लाइट रे है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ से पास हो रही है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज थ्रू दीज लेंसेज, तो वो मैं रूल्स भी आपको बता देती हूँ, ताकि फिर नेक्स्ट आपका जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आई विल एक्सप्लेन अबाउट द इमेजेस ओनली। इमेजेस सिर्फ हम ड्रॉ करके बताएंगे। तो यहाँ पर रूल्स regarding the rays to obtain images, whether it is a convex lens or concave lens, rules are the same. और वो rules क्या है? Normally I take two rays to form an image. जो आपके रे डायग्राम से जो हम इमेजेस बनाते हैं, we show the position of object and position of image and nature of image, वो हम जो बताते हैं,
तो उसमें नॉर्मली आई टेक 2 रेज, और क्योंकि उससे आसान हो जाता है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपका डायग्राम क्लियर हो जाता है। तो बाकी के जितने भी इसमें से रेज आप पास करते हो उनके कुछ रूल्स हैं। आप जहाँ से मर्जी अपने मनमर्जी से रेस को पास नहीं कर सकते हो, यू विल हैव टू फॉलो सम रूल्स। तो व्हेनेवर यू ड्रॉ एक रे डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो तो आप अपना मिरर ड्रॉ करो, सॉरी मिरर नहीं, आपका लेंस कर रहे हैं हम, तो लेंस ड्रॉ करो। ये कॉन्वेक्स लेंस है, सेंटर में थोड़ा सा ऐसे आप टिक मार्क कर लो, और यहाँ पे ये हमारा हो गया सी ऑप्टिकल सेंटर। ये हमने थोड़ी डैश डैश करके एक लाइन खींच ली है, यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद हम इनका रिफ्लेक्शन शो करेंगे। एंड दिस इज फोकस एंड दिस इज 2f। ऑप्टिकल सेंटर को हम 2f से डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज एट द डबल डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ। तो अब यहाँ से पहला रूल क्या है, एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। इट विल गो लाइक दिस। आप कहीं से और इधर उधर से कहीं से नहीं आप इसको लेके जाना है आपने। एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। ये हमारा रूल है एंड यू विल हैव टू फॉलो दिस रूल। तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ से मर्जी रेज, उनका पता ही नहीं चलता है कहाँ से रेज ला रहा है और कहाँ से उसको जहाँ से मर्जी पास कर देते हैं। दिस इज नॉट अलाउड। सो एनी रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल हैव टू पास थ्रू फोकस। तो डायग्राम बनाते टाइम यू हैव टू बी केयरफुल कि पैरेलल रे को आपने फोकस में से पास करना है। अगर आपका ऐसा है, ये कॉनकेव लेंस है, तो भी रूल्स आर द सेम। ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, सी है, ये वर्चुअल फोकस है, ये 2f है वर्चुअल, ये इधर फोकस वर्चुअल है ये। तो आपकी ये जो रे है, दिस इज योर रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये ऐसे डाइवर्ज होगी। इसको जब आप पीछे बनाओगे इट शुड पास थ्रू द फोकस। ये डाइवर्ज हो रही है, ये इसमें से पास हो रही है, फोकस में से ही पास हो रही है। इफ़ यू एक्सटेंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो ये देखो पीछे से ही पास हो रही है। तो इस एंगल से इसको मोड़ोगे, आप टर्न करोगे ताकि ये डैश डैश करके इट शुड पास थ्रू द फोकस। सो ये इसमें भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। ये इसका जो डायरेक्शन है देखो फोकस में से ये आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। इसके बाद आ जाता है आपका कि अब आप रे को लेके जाते हैं सपोज ऑप्टिकल सेंटर में से। व्हेन यू पास अ रे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल नॉट डेविएट एनीवेयर, इट विल गो एज सच। वो कहीं भी डेविएट इधर उधर मुड़ेगी नहीं, सीधी जैसे आ रही है वैसे ही निकल जाएगी। दिस इज द रूल, स्ट्रेट ऐसे ऑप्टिकल सेंटर में से निकल रही। इसमें भी यही रूल है, ऐसे गई और ये ऐसे के ऐसे ही निकल गई है, लेकिन इसको पीछे आप बढ़ाओगे तो ये ऐसे के ऐसे ही निकलेगी। सो सेम इसमें भी रूल अप्लाई होता है। तीसरी रे जो आप अगर देखते हैं तो एक रे और मैं लेके जाती हूँ फोकस में से। ये आपका फोकस है, इसमें से जो रे जा रही है, पहले हमने क्या किया था, पैरेलल रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस में से निकल रही थी। अब आपकी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस में से आ रही है, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल। ये क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। मतलब जो पैरेलल थी वो फोकस में से निकली, जो फोकस में से आ रही है इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो दीज आर द रूल्स। और इसमें भी ऐसे ही होगा, जो ये है ये फोकस में से निकल रही है, जो फोकस में से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी, इस तरह से वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें से जब निकलेगी फोकस में से आएगी, इट विल बिकम पैरेलल लाइक दिस। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, सेम रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और इसमें भी सेम रूल्स हैं। सो दीज आर द some important rules regarding the image formation and you are going to use these rules when you draw the ray diagram, right? So this is all about today। और ये मैंने आज इंट्रोडक्शन लेंसेज का दिया है।
नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा उसमें मैं एक्चुअल में जितने भी पोजीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन की आई विल एक्सप्लेन, और मैं बताऊंगी कि व्हाट विल बी द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. Right? So this is all about today. I hope you have understood all the topics. If you have any problem तो please write in my comment section. कई बच्चे मेरे से कई क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में ही उनका आंसर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. सो डोंट हेसिटेट. आपका कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है बता दें. एंड अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट. ओके, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. और आगे मैं जल्दी थोड़े आपके, क्योंकि अब मैंने आगे भी पढ़ाने हैं चैप्टर, क्योंकि अब टाइम बहुत घटता जा रहा है आपका. मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे. सो मैं क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी. इन ईच वीडियो आई विल एक्सप्लेन 6-7 क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन होते जाएंगे एंड वी विल कवर द होल चैप्टर लाइक दिस. सो थैंक यू so much. Thank you so much for watching my video. Okay, thanks.